जरूर भी रहेगा तो फुल लाइफ बैटमैन के लिए। चलो check the homework. 9th का बचा हुआ एंट्री 28 purchase goods of 10,000 at 10% TD 2% CD. Sold the above goods at 5% TD and 2% CD. Is it on cash or credit? Cash. Purchase भी कैश में और सेल भी कैश में। मुझे बताओ कैसे पता चला? पार्टी का नाम दिया ही नहीं है। So which discount should come? Both TD as well as CD. तो पहला परचेज क्या होता है? What's your gross price? 10,000. उस पे you take 10% TD. Get 1,000. Net is 9. उस पे 2%. 180. Net is 8820. Entry should be purchased to cash to discount receipt. Right? Purchase में 9 to cash 8820 to discount receive 180. Is that correct? Hello. Sold the above goods at 5% TD and 2% CD. Same goods whenever you sell, gross price remains same. So 10,000 पे 5% TD is 9,500. 9,500 पे take 2%. That's 190. That is 9310. आपका entry होगा cash account debit, discount allowed debit to sales. Is that right? Cash debit 9310, discount allowed debit 190 to sales. It is 9,500. बराबर? Is that clear? Then मिला? Next one. Purchase goods of 8,000, 8% TD, 1% CD. Sold half of the above goods at 4% TD and 1% CD. This is also happening on cash. Can we merge purchase with sales? No. Purchase alag, sales alag. But both are happening on cash basis. So both the discount should come. So purchase के वक्त 8,000 पे 8% TD 640. Net is 7360. 7360 minus 1% is 73.6. That is 74. तो 7286 आपकी एंट्री होगी परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज में 7 परचेज अकाउंट डेबिट 7360 to cash 7284 to discount 7286. Purchase 7380 to cash purchase 7360 to cash 7286 and to discount receipt 74. That's your discount receipt. Is it clear? Then next one is sold the sale at 4% DD and 1% CD. So gross price remains same 8,000. उस पे उसका half, so 4,000. Half. So half 4,000. 4,000 का 4% is 160. Net is 3840. 3840 का 1%, 38.4. That's 38. So net amount 3802. Right? Entry should be cash debit, discount allowed debit to sales. Cash debit 3802, discount allowed 38 to sales 3840. बराबर है? मिला ये? Then purchase goods of 6,000 at 10% TD, 1% CD from Vishal. Sold the same to Vasant at 5% TD and 2% CD. This is on credit. Purchase is also on credit and sale is also on credit. So पहला purchase to Vishal 5,400 net of TD. And then same GP लेना है लेकिन 5% TD. तो Vasant to sales 5,700. Is that right? Purchase to Vishal and Vasant to sales 5,400, 5,700. Sorted. Then Vasant returned half of the goods which were returned back to Vishal. So Vasant returned half. There are two ways of calculating this. बताया था मैंने. या तो आप 5,700 का half करो. So 2,850. So sales return to Vishal. sales return to Vasant 2,850. That is one way of doing it. या फिर आप ग्रॉस का आधा लो तो 6 का आधा होता है 3. बट क्योंकि ग्रॉस है तो TD माइनस करना है तो वसंत वाली 5% TD तो 2,850 आएगा वापस 3,000 minus 150. Got it? So sales return to Vasant 2,850. Amount remains same. And the same lot is returned to Vishal. So one way of doing this is विशाल से खरीदा क्या भाव पे था 5,700 5,400 उसका हाफ कर दो तो 2,700 स्ट्रेट
So Vishal to purchase return 2,700. That is one way. Another way of doing this is you take the gross. Sales returns or purchase return का GP remains same. So what's your gross price? 3,000. But this time 10% TD. Purchase का TD 10%. So 300. So net is 2,700. तो आपका एंट्री होगा विशाल टू परचेज रिटर्न. That will be 2,700. No. यहाँ पे तुमने शायद 1/4 ले लिया है. वो ऊपर वाला था, ये पूरा बेचा है. विशाल वसंत वाले में पूरा बेचा है. सोल्ड टू वसंत पूरा. खरीदा भी 6 का, बेचा भी 6 का. तो हाफ और वही हाफ वापस आया. गॉट इट? हाफ बेचा होता तो हाफ का कर दो. मिला ये वाला? और क्लियर? रीड आउट्स आया सबको? पक्का? बढ़िया. हेलो. Now see, next one. 24th वाला challenge. Challenge किया try. 24th. In the books of Hemant. मिला आपको? देखो ध्यान से. First one. Mr. Dukhi who owed us rupees 10,000 declared himself insolvent. बराबर है? Bankrupt हो गया. बराबर है? And his estate paid 30 पैसे न रुपये as full and final dividend. मतलब दुखी भैया से अपने को लेना था 10, लेकिन उसने 30 पैसे न रुपये मतलब 30% दिया वो कैश, और जो नहीं दिया वो बैड डेट. तो आई थिंक 3,000 कैश दिया, 7,000 बैड डेट हो गया. आपका एंट्री क्या होना चाहिए? कैश बैड डेट टू दुखी. कैश बैड डेट टू दुखी. कैश बैड डेट टू दुखी. ये होगा 3,000, ये होगा 7,000 और ये होगा 10,000. इज दैट राइट? कैश एसेट बढ़ा, बैड डेट लॉस बढ़ा और दुखी डेटर घट गया. बराबर है? ये आया सबको? ये तो सिंपल था, इसमें कोई डाउट? चलो बढ़िया. नेक्स्ट वन बढ़ो. Bought a second-hand car of 65,000 from Messrs. Katawala and Sons against check payment, and further spent cash 11,000 on painting and 11,000 on tires. अभी हमने कार खरीदा है और ताबड़तोड़ आपका एक्सपेंस हो गया है टायर्स और पेंटिंग. वो ऐड करना है आपको कॉस्ट में. करना है ना? करना ही है. बराबर है. तो कार अकाउंट डेबिट कितना होगा? 87. अभी उसमें से पेमेंट कैसे किया आपने? टू बैंक you have paid only 65,000 or to cash the tire and painting, that is 22,000. ऐसा ये आया. हमने got both correct. मोटर का एसेट बढ़ा, टायर पेंटिंग ऐड करना है, टू बैंक फॉर चेक पेमेंट्स एंड टू कैश. कांटा वाला का नाम नहीं है बिकॉज चेक एंड कैश. बिकॉज चेक एंड कैश. बराबर है? इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? थर्ड वन. ओके. Acquired a factory premises of 7,50,000 by a loan from IDBI of 7 lakh and issued a check for the balance. Also issued another check of 10,000 to Shah and Mehta solicitors for legal fees to acquire the factory premises. तो आपका फैक्ट्री खरीदी आपने, तो इधर राइट फैक्ट्री प्रीमाइस या फैक्ट्री बिल्डिंग, और यू कैन राइट लैंड एंड बिल्डिंग या प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, कुछ भी चलेगा. कितने की आई है टोटल प्रॉपर्टी? वो शायद मेहता का भी फीस इसमें ऐड हो जाएगा. कि अगर वो ऐड नहीं करोगे तो फैक्ट्री यूज नहीं कर सकते. तो एसेट परचेज करते वक्त नो, वही तो मैं बोल रहा हूँ. एसेट परचेज करते वक्त जब तक उसको यूजेबल कंडीशन में नहीं लाते हो ना, तब तक का ऑल द एक्सपेंसेस वुड बी एडेड टू द कॉस्ट. बटन दबा के चालू नहीं किया या फिर यूज करने का स्टार्ट नहीं किया, तब तक का सभी एक्सपेंसेस आप क्या करोगे? एड अप टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. एड अप टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइस would be 7,60,000. Is it clear? How? 760 7.5 लाख का प्रीमाइस प्लस 10,000 का सॉलिसिटर्स फीस.
टोटल वैल्यू 760, उसमें से पूरा का पूरा चेक नहीं है, IDBI लोन क्रेडिट द गिवर, कितने का लोन है 7 लाख। जैसे कैश टू लोन होता है वैसे प्रॉपर्टी टू लोन, प्रॉपर्टी बढ़ाओ सीधा लोन से पैसा आ रहा है। सो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट दैट लोन, लाइबिलिटी बढ़ा एंड टू व्हाट बैंक, टू बैंक कितना 60, कैसा 60 50 प्रॉपर्टी का और 10 फीस का, टोटल 60 आपने चेक में पे किया। तो एंट्री होगी फैक्ट्री प्रीमाइस या लैंड एंड बिल्डिंग या प्रॉपर्टी या फैक्ट्री प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू IDBI लोन टू बैंक। इज दिस क्लियर? गॉट ऑल 3 करेक्ट। ठीक है, मिस्टेक समझ में आया? शायद मेहता का नाम नहीं आएगा, सॉलिसिटर फीस अलग से नहीं आएगी, क्यों? हाँ, एट द टाइम ऑफ परचेज एड अप ऑल द वन टाइम है, ये लॉन्ग टर्म का खर्चा, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, हर साल होने वाला नहीं, वन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वन। गुड्स वर्थ 1 लाख were damaged due to fire, sold the damaged goods for cash 35,000। नाउ एक तो जल गया है गुड्स तो लॉस हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और ये तो आता ही आपको टू गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू गुड्स लॉस बाय फायर। कितना था आपका टोटल गुड्स गया है 1 लाख का, लेकिन उसमें आपने क्या किया, जो कूड़ा कचरा गुड्स बचा हुआ था आधा अधूरा, उसको आपने बेच दिया और उसका आपको कैश मिल गया। इट इज एज गुड एज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। क्लेम नहीं मिला बट सिमिलर टू रिसीव, पैसे आ गए। तो कैश कितना आया 35 आया और गुड्स कितने का गया 1 लाख। तो कहना है लॉस कितने का हुआ 65। तो दिस शुड बी योर इंटरेस्ट। Loss by fire, cash to goods lost by fire. Why can't you write sales? Because वो दिखा दिया कि goods ruin हो चुका है fire से। Sales कब यूज करना है? When you sell it to the third party with a profit. Debtor को आप बेचते हो ना with profit. That time you use sales. ये क्या प्रॉफिट लगा के जा रहे हैं? ये तो कॉस्ट प्राइस पे जा रहे हैं। 1 लाख के गुड्स से चल गए, 1 लाख के 1 लाख 20-30 में आप देते तो सेल्स थर्ड पार्टी के। अदरवाइज यू कैन नॉट यूज सेल्स अकाउंट। अदरवाइज ऑलवेज, याद है मैंने बताया था, इसका ऑप्शनल अकाउंट इज परचेज, कॉस्ट प्राइस पे जाता है। आइदर यू राइट परचेजेस और यू राइट गुड्स लॉस्ट बाय फायर। सेल्स यूज नहीं कर सकते। सेल्स कब यूज करते हो? थर्ड पार्टी सेल के बेचते हो, नॉर्मल कोर्स। यहाँ पे तो गुड्स जल गए और पैसे मिल गए आपको, क्लेम नहीं आया, ऐसे ही बेच के पैसा आ गया। तो कैश लॉस बाय फायर टू गुड्स लॉस बाय फायर। दिस इज योर एंट्री। Who got all 4 correct? रेस नैरोस पक्का राइट है विदाउट एनी मिस्टेक। अच्छा, बाकी लोगों को समझा? यहाँ पे गड़बड़ आपकी क्या हो जाती है, मोस्टली सेल्स हो जाता है, ये कॉमन एरर है। या फिर लॉस लिखना भूल जाते हो, सोचते हो गुड्स है, बट गुड्स है तो वो डेली ट्रांजैक्शन का लॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होता। ये जल गया है, अबनॉर्मल है, तो ये रिकॉर्ड होगा। इज इट क्लियर? पढ़ा अभी लिख रहा है चलो लास्ट वन, ओके, टाई ब्रेकर। फिफ्थ वन आपका क्या हुआ है? सेटल अ क्रेडिटर रितुज अकाउंट ऑफ 21,000 बाय पेइंग रेंट ऑन बिहाफ 2,000 एंड गिव हर अ कंप्यूटर ऑफ बुक वैल्यू। कंप्यूटर है ऑफ बुक वैल्यू, कंप्यूटर बुक नहीं है। कंप्यूटर ऑफ बुक वैल्यू 20,000 फॉर 18,000। चेंज करना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर बुक है। हाँ दैट्स ओके, कंप्यूटर बुक लिखा है तो भी राइट ही समझो। बुक लिखा, बुक अकाउंट। हाँ, उसको कंप्यूटर कर दो, खाली बुक को कंप्यूटर कर दो। कंप्यूटर बुक चलेगा। हाँ, कंप्यूटर बुक नहीं है वो, कंप्यूटर ऑफ बुक वैल्यू है, तो कंप्यूटर बुक लिखा है ना, तो उसको खाली बुक कट कर दो, कंप्यूटर लिख दो। कंप्यूटर ऑफ बुक वैल्यू, कंप्यूटर ऑफ बुक वैल्यू 20 फॉर 18,000। 20,000 का आपने 18 में कंप्यूटर दे दिया उसको, ऐसा। गॉट इट? कंप्यूटर ऑफ बुक वैल्यू 20 फॉर 80, या कंप्यूटर बुक लिखा है तो कंप्यूटर बुक ऑफ 20 फॉर 80। तो कंप्यूटर बुक, खाली बुक को कट करके कंप्यूटर लिख दिया, 20 का 18 में गया कंप्यूटर बुक जो भी है। ओके, चलो बताओ क्या एंट्री की है, किस किसकी राइट थी? पहली 4
बताओ क्या किया fifth का? Ritu account debit to cash account to discount received account to computer book account. Wrong. वही Wrong. किया था। Ritu account debit 21,000 to cash account 2,000 to computer book account 18,000 and to discount received account. Wrong. Same record. Wrong. 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 To be bonus? Not attempted. हाँ? Rent paid on behalf of अरे मैं entry पूछ रहा हूँ। भाई कौन सी दुनिया में? Ritu account debited. लिखा है? हाँ, अरे रेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर रितु अकाउंट तो कैश टू डिस्काउंट। अरे यार रेंट को क्यों डेबिट किया? बाकी राइट था तुम्हारा। चलो फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ वाले में क्या सीन हो रहा है? आप रितु को सेटल करो। रितु अकाउंट डेबिट, रितु को सेटल कर रहे हो। रितु को कितने से सेटल कर रहे हो? 21। उसके बिहाफ पे क्या पे कर रहे हो आप? तो उसके बिहाफ पे कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी? रितु टू कैश, उसके बिहाफ पे कर रहे हो। पेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ राम टू कैश, पेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ रितु टू कैश। हमें रितु को 21,000 देने थे। हमने रितु को 21,000 देने थे। हमने उसको क्या बोला? हमने उसको बोला कि देख मैं तुम्हारा रेंट पे कर रहा हूँ, तो अपना 2,000 से सेटल हो गया अकाउंट। तो मैं थोड़ी रेंट टू कैश लिखूंगा। रेंट मेरा एक्सपेंस थोड़ी है, रेंट किसका है? उसका है ना, उसके बिहाफ पे कर रहा हूँ। तो रितु टू कैश कितना? 2,000। तो रितु टू कैश कितना? 2,000। तो रितु हो गई सेटल 2,000 से। ये समझ में आया? उसके बिहाफ पे अपने रेंट पे किया। रेंट हमारा एक्सपेंस नहीं है, रितु टू कैश उसके बिहाफ पे किया। रितु कम हो रही है, लायबिलिटी घटी, लायबिलिटी घटी और कैश घटा, अपना कैश गया। समझा? ये वो किया था हमने, याद है? पेड रेंट ऑन बिहाफ ऑफ राजीव अवर क्रेडिटर, राजीव टू कैश। बिहाफ दिया तो पार्टी टू कैश। अच्छा, तो रितु टू कैश हो गया आपका। अभी कितना और देना है रितु? 90। आप अपनी कंप्यूटर बुक या कंप्यूटर जो भी है वो लेके गए थी, कितने की? 20 की। हमने बोला ये लग 20 और ऊपर से 1,000 मुझे दे दे। रितु ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं 20 का, ये 20 वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू कितना है? 18। तो उसने एक्सेप्ट तो किया कितने में? 18 में। तो आपका कंप्यूटर गया या कंप्यूटर बुक जो भी लिखा है अपने कंप्यूटर अकाउंट कितने का था? 20 का था, 18 में गया। अब ये गुड्स है कि एसेट? एसेट। उसमें प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड होता है ना। तो कंप्यूटर था कितने का, या कंप्यूटर बुक थी कितने की? 20 की, और गई कितने में? 18 में। तो 2,000 का क्या हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। कितना? 2,000। Discount received. Depreciation is slow and gradual over the time. Sudden decrease at the time of sale. डिस्पोजल के वक्त जो भी सडन फॉल इन द वैल्यू है, दैट इज लॉस। फॉर एग्जांपल दिस एसी 50 का लिया था, हर साल 10 से डेप्रिशिएट हो रहा है। 4 साल डेप्रिशिएट हो गए, 40,000 डेप्रिशिएट हो गया। अभी 10 का हो गया। 10 अभी वैल्यू 10 है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू इज 10। आई वेंट टू सेल इट इन द मार्केट फॉर 10, आई गॉट ओनली 7। दैट सडन फॉल ऑफ 3 इज लॉस। पहले जो हो गया ग्रेजुअली दैट्स डेप्रिसिएशन। सो यू हैव रिटन डेप्रिसिएशन साइड, अदरवाइज इट्स करेक्ट। आगे पता डिस्काउंट के लिए आया। आ रहा है ना अभी। रितुज अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 21। उसके बिहाफ में रेंट पे किया 2, तो और कितना देना था उसको? 19 देना था। 19 देने गए, उसने कंप्यूटर एक्सेप्ट किया 20 का कितने में? 18 में। तो अपना लॉस हुआ 2 का। तो रितु ने तो 18 में ही एक्सेप्ट किया। 18 और 2 कितने से सेटल हो रही है फिलहाल? 20, और दे रहे थे 21। तो एक्स्ट्रा 1,000 आर वी पेइंग एनीथिंग? इन फुल सेटलमेंट, सो दैट इज डिस्काउंट रिसीव। दैट इज डिस्काउंट रिसीव। कितना? तो एक्चुअली देयर आर 2 ट्रांजैक्शंस हैपनिंग ओवर हियर। एक ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका रितु
to rent to discount receipts. और एक हो रहा है रितु लॉस टू कंप्यूटर. कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर बुक लिखा है, दैट्स फाइन. बट एसेट है तो क्लिक होना चाहिए. एसेट पे प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड होगा, गुड्स पे प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं. तो आपको पता है कंप्यूटर आपने क्या, मशीन 10 की 8 में सेल की, 10 का मशीन 8 में सेल किया, तो व्हाट इज द एंट्री? कैश लॉस टू मशीन. कैश आया, लॉस बढ़ा टू मशीन. याद है? कैश लॉस टू मशीन. यहां पे क्रेडिट में सेल किया, तो रितु लॉस टू कंप्यूटर. हेलो, था कितने का कंप्यूटर? 20. रितु में कितना? 18 और लॉस ऑफ 2. रितु कितने से सेटल हो गई है फिलहाल? 18 से. और कितना देना है रितु को? 3. तो उसके बिहाफ पे रेंट पे किया, उसके बिहाफ पे रेंट पे किया, तो क्या होगा? रितु टू कैश. रितु टू कैश, रोकड़ा दिया उसके बिहाफ पे हमने. कितना दिया? 2000. और 1000 कुछ नहीं दिया तो डिस्काउंट. तो रितु टू कैश टू डिस्काउंट. करेक्ट? एक था रितु टू कैश टू डिस्काउंट, एक था रितु लॉस टू कंप्यूटर. मर्ज किया तो ये देखो मर्ज एंट्री है. रितु रितु ऐड किया है, टू कैश टू कंप्यूटर टू डिस्काउंट, और इधर लॉस. समझा? मेन चीज ये लॉस रिकॉर्ड करना था. एसेट था ना, तो लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा. 20 का 18 में गया. तुमने क्या किया? रेंट की मतलब कैश की बदले रेंट लिख दिया, वो लॉस. और इसके लॉस किसने रिकॉर्ड किया? ये लॉस. यू रिकॉर्डेड लॉस, बट व्हाट डिड यू डू? रेंट. कैश के लेके रेंट. हाँ, रेंट डेबिट किया. समझा अभी? और ये एंट्री आने का चांस नेग्लिजिबल है. अपने टेस्ट में भी नहीं आने का चांस नहीं है, और एग्जाम्स में भी इतना चांस नहीं है, बट बहुत रेयर चीज. कॉलेज को हैरेस ही करना है आपको, या फिर रैगिंग ही करनी है, तो ऐसे एंट्रीज डाल देंगे. एक बार देखा हुआ होना चाहिए. तो आई थिंक द राइट, सो रिकॉर्ड स्टेज किस बात? अनसॉल्व पूरा सब. ओके, सर कितने साल से रिकॉर्ड है? 13-14 साल में 3 से 4 लोगों ने किया. लास्ट बैच में उसने किया है, एक बंदे ने, जय ने. लास्ट बैच में जय का पूरा रहेगा. तो सर रिकॉर्ड कैसे? सर तो वो चॉकलेट ये बैच दिया उसको. 3-4 लोगों ने किया है सॉल्व, बट बहुत कम लोग कर पाते. यहाँ पे लोचा मार देते. ये लॉस क्लिक नहीं होता. दिया होता है 20 का 18, गुड्स नहीं है, फिर भी क्लिक नहीं होता. Sale of computer, but I got 20,000 amount. 2000 का लॉस. चलो